America, they launched an attack on Iran, and it's highly unfortunate. I'm sure definitely Iran will become a nuclear weapon state in next 5-10 years. You will not be able to stop them. ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थे। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी जो इनसे मिला हुआ है। इट्स वेरी सैड। आप देखिए ओसीआई ने तो चुप्पी साधी है, लेकिन आप देखिए इंडिया का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान, एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वीव ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। आफ्टर ऑल ईरान इज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। बहुत दुख की बात है जो लोग ईरान में हैं, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है, या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है। एंड वीव सीन कि हमेशा जो अमेरिका की 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम। देयर इज लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया, सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं। My take is this is violation of the international law. It is violation of United Nations Charter. It is violation of non-proliferation treaty, and in fact, it is also a violation of United States Constitution. Without the congressional permission, President Trump has went ahead and bombed Iran's 3 nuclear sites. So this is violation of all these 4 points, and one must also remember that by doing this, I am sure definitely Iran will become a nuclear weapon state in next 5-10 years. You will not be able to stop them, and we don't know whether before this bombing Iran might have also shifted that stockpile. But this will not be a deterrence, because if Iran is a member of IAEA, it has signed NPT. IAEA inspectors have gone over there, and the IAEA report is very clear. Iran was not making nuclear bombs over there, but this will not be a deterrence. In fact, I feel that there will be many Arab and Muslim countries who will feel that they will also have to have a nuclear technology or a nuclear bomb, so that it will be a deterrence against any future Israeli attacks against them. And one must also remember that there are more than 60 million Indians living in the Gulf or Middle East. And if that area erupts in a war, which, unfortunately the likelihood looks like that, then, it will have a grave impact on the Indians living over there. The investments which Indian companies have made in all these Arab countries or Gulf countries, and a substantial amount of foreign exchange comes from this area. And lastly, this boogie has been created about Iran having nuclear weapons or this and that. The same thing was used in Iraq, weapons of mass destruction. Nothing came out. Same thing was used in Libya. Nothing came out. So this attack by US has helped Netanyahu, who's a butcher of Palestinians, to cover up the genocide which he has done in Gaza, and he continues to do. A place where 55,000 Palestinians have been killed, a genocide is happening in Gaza, and the US is not worried about it. And lastly, we must ask the Pakistanis, for this, did they want Trump to get a Nobel Peace Prize? Because they were the proposers for that Nobel Peace Prize. लड़ाई कभी किसी का हल नहीं है। आप यूक्रेन और रशिया का देखिए, वो लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रही है, वो एक तरफ से अमेरिका है, दूसरी तरफ से रूस है। नतीजा क्या है कि आज कौन मर रहे हैं? यूक्रेनियन मर रहे हैं। उनका कोई शहर बर्बादी के बगैर नहीं रहा। क्या मिला? क्या कुछ हासिल होगा? ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है।
ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाजा चाहिए, वो गाजा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है, इसलिए वहां पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहां के रहने वाले हैं। हजारों में मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है, समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे। और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहां कोई अच्छी चीज बनेगी? क्या वहां पे कोई और चीज आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए, ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है, और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा, तो इनकी गलत फहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है, जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है। ईरान पर हमला ये गर्दन मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, झुकेंगे। मगर गर्दन झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था, शहादत उन्हें माना नहीं। उन्हें कहा नहीं, जब तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूं। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। झुकेंगे। उनके सर नेजों पे खड़े कर दिए गए